Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum students. How are you? Hope you all are doing well. English grade 7. As we have already finished our reading and translation of unit number 9, Vision Without Sight, in our previous lecture, and now we are going to solve its exercise. Students, open your page number 71. Listening and speaking focus. Read the following dialogue and discuss its idea. यहाँ पे हमें एक डायलॉग दिया हुआ है जिसे हमें रीड करना है और फिर इसके बाद हमें बताना है कि इसका आइडिया, मेन आइडिया क्या है. सो लेट्स रीड इट. टीचर. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स. गुड मॉर्निंग टीचर. टीचर. Class, today we will talk about people with special needs. So tell me if you know anyone around you with some mental or physical disability. Sarah. Yes, I know. Howard. I know a deaf and dumb girl in my neighborhood. Zishan. I know a boy who is my close relative. He was born without limbs. Teacher. Students, speak one by taking turns. Student. Sorry teacher. Teacher. It's okay. Alia. Teacher, please tell us how we can help such people. Teacher. Okay, let me share some necessary instructions to treat physically or mentally challenged people around us. First of all, we should communicate with them politely. We should ask before providing any assistance and help. We should be respectful in our words and actions and should not ask any disturbing questions. We can donate and raise funds to help the mentally or physically challenged people with their basic money needs. We should help in raising awareness about the needs and problems of such challenged persons. Students, that's really informative. We will try our best to follow these instructions. Teacher, thank you for guiding us. Teacher, you are welcome. So students, this dialogue was between a teacher and few students. In this dialogue, they are talking about physically and mentally disabled people. इस डायलॉग में जो एक टीचर और उसके स्टूडेंट्स के दरमियान है, इसमें टीचर और स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे हैं ऐसे लोगों के बारे में जो कि फिजिकली डिसेबल होते हैं, यानी जिनको फिजिकली यानी जिस्मानी तौर पे या मेंटली जहनी तौर पे सही नहीं होते, माजूर होते हैं. उन लोगों के बारे में इस डायलॉग में बात की गई है. सो बेसिक आइडिया ऑफ दिस dialogue is this, that how should we treat the people who are with their physical or mental challenges. Next question, comprehension focus. Answer the following questions. आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स नोट्स मिल जाएंगे. आप नोट्स में से अपनी नीड कॉपीज पे लिखने हैं और इनको अच्छे से याद भी करना है. आपकी जो कॉपी होमवर्क होगा वो आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्लेन इन अ फ्यू लाइन्स द एजुकेशनल जर्नी ऑफ जस्टिस यूसुफ सलीम. जस्टिस यूसुफ सलीम का एजुकेशनल जर्नी जो है वो आपने एक्सप्लेन करना है. डिड जस्टिस यूसुफ सलीम ऑलवेज एस्पायर टू बी अ जज? हाउ डिड ही prepare himself for the examination? What is the name of the disease Justice Yusuf Salim is afflicted with? What are the effects of this disease? What is the message of Justice Yusuf Salim to people? What do you know about Braille? इन सब के नोट्स आपको मिल जाएंगे और आपने उनको नीट कॉपीज पे लिखना है. ये जो रेड में क्वेश्चन मेंशन है, ये क्वेश्चन की टाइप है जिसे हम लिटरल क्वेश्चन कहते हैं. और लिटरल क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर हमें डायरेक्टली टेक्स्ट में से ही मिल जाता है. आप अगर अपनी बुक
में इस टेक्स्ट में इसको देखेंगे इसका आंसर, तो आपको वहां से ही इसका आंसर मिल जाएगा। हमें कहीं और से पढ़ने की या कुछ से अपने पॉइंट ऑफ व्यू देने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें ये लिटरल क्वेश्चंस टेक्स्ट में मौजूद मिल जाते हैं इनके आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। Cause and effect is a relationship between events or things where one is the result of the other। यानी एक cause होता है और उस cause का कोई ना कोई effect होता है, यानी उसका कोई असर होता है। इन दोनों के दरमियान हमेशा relationship होती है। ये कोई events भी हो सकते हैं और things भी हो सकती हैं। This is a combination of action and reaction, यानी हर action का एक reaction होता है। Words like so, because, since, that, is and why normally reflect the cause-effect relationship। जो words हैं so, because, since, that, is, why, ये सारे हमें cause-effect relationship का बताते हैं और ये उसको reflect करते हैं। Read the given diagram carefully to notice the cause-effect relationship। ये diagram दी हुई है, इसको हम देखेंगे कि इसमें किस तरह से कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप बताया गया है। कॉज है सादिया डिडंट ईट एनीथिंग टुडे। इफेक्ट इज सो शी वॉज वेरी हंग्री, यानी कॉज ये था कि उसने कुछ खाया नहीं हुआ था सारे दिन से, इसलिए इफेक्ट ये हुआ कि वो शी वॉज फीलिंग रियली हंग्री, यानी वो बहुत उसको भूख लग रही थी। तो ये हमारा एक्शन था और ये हमारा इसका रिएक्शन हुआ। इसी तरह कॉज है डैड लॉक द कार। इफेक्ट उसका ये हुआ दैट इज व्हाई वी कुडंट गेट इन द कार। डैड ने कार को लॉक कर दिया इसलिए वो कार में जा नहीं सके, तो ये इस एक्शन का रिएक्शन था, यानी इस कॉज का इफेक्ट। थर्ड इज शी वॉज लेट फॉर स्कूल। इफेक्ट इसका क्या है, सो शी रन टू गेट टू स्कूल, यानी ये एक्शन हुआ कि वो स्कूल से लेट हो गई और फिर उसका रिएक्शन ये हुआ कि उसको जल्दी से जाना पड़ा या भाग के स्कूल की तरफ जाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द टेक्स्ट केयरफुली, अंडरलाइन द कॉज एंड सर्कल देयर इफेक्ट्स। एक पैराग्राफ दिया गया है, इस टेक्स्ट को हमने रीड करना है और इसमें से हमने ये बताना है कि कॉज कौन सा है और इफेक्ट कौन सा है, और जो कॉजेज हैं उनको हमने अंडरलाइन करना है और जो इफेक्ट है उसको हमने सर्कल करना है। Ahmed was really excited today because his exam results were going to be announced soon. In this line, Ahmed was really excited today is the cause। इस सारे को हम अंडरलाइन करेंगे। Ahmed was really excited today, यहाँ तक। Because his results were going to be announced soon, this is the effect। So हम because से लेके soon तक इसको सर्कल करेंगे। Next line is I was very confident about his success। This is the cause as he had worked really hard। This is the effect। सो हमने आई से लेके सक्सेस तक इसको अंडरलाइन करना है, एंड फ्रॉम एज टू हार्ड वी हैव टू सर्कल दिस लाइन। Tears of joy fell through my eyes as the teacher announced the result। Tears of joy fell through my eyes, ये आपका cause है, so underline this line। Next is as the teacher announced। As the teacher announced is an effect, so you have to circle it from as the teacher announced the result। यहाँ तक आपने इसको result तक आपने सर्कल करना है। Ahmed had stood first in his class। I had helped Ahmed in his studies, so I felt really happy about his success। I had helped him in his studies। ये आपका cause है, अंडरलाइन करना है इसको, एंड देन so से लेके सक्सेस तक दिस इज द इफेक्ट। सो आई felt really happy about this success। आपने इसको you have to circle this line।
अंडरस्टैंड? आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है. नेक्स्ट इज फोनिक फोकस. Consonant clusters. Consonant clusters in a word is a group of different consonants, 2 or 3, that combine together to produce another sound. हर वर्ड में 2 या 3 ऐसे कॉन्सोनेंट्स होते हैं जो मिलके एक और साउंड क्रिएट करते हैं, उसे हम कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं. दे यूज द इनिशियल और फाइनल पोजीशन इन अ वर्ड. वो इनिशियल भी हो सकते हैं, इनिशियल मीन स्टार्ट में भी हो सकते हैं, एंड फाइनल पोजीशंस यानी वो एंड पे भी, एंड के अल्फाबेट्स या लेटर्स भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल RTS इन स्पोर्ट्स एंड STR इन स्ट्रिंग. ये 2 आपके कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स हैं जो इनिशियल और फाइनल को शो कर रहे हैं. अब यहाँ पे एग्जांपल्स है 2 कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स की. MP, camp, lamp. नेक्स्ट इज PT, kept, except. ये कॉन्सोनेंट 2 कॉन्सोनेंट मिलके एक साउंड को क्रिएट कर रहे हैं, ये हमारा कॉन्सोनेंट क्लस्टर है. SP, crisp, clasp, ND, friend, find, SK, desk, risk. 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर में फर्स्ट है NTS, accounts, agents, helps, scalps. MPS साउंड दे रहा shrimp, pumps. RTS साउंड दे रहा sports, shorts. FTS, craft, shafts. Read the given examples of 2 consonant clusters in final position. Final position means जो end पे आ रहे हैं वो 2 consonant clusters को हम read करते हैं. Students are looking for a torch in camp. I will not accept. ये जो आपको कीज दी गई हैं ये प्रोनाउंसिएशन कीज हैं जो कि हमें बता रही है कि हमने इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है. I will not accept your apology. These fries are crisp and fresh. My friend is in the library waiting for me. Students are arranging desks in the classroom. Next question is, read the given examples of 3 consonant clusters in final position. अब पहले हमने 2 consonant clusters पढ़े थे final position में. These are 3 consonant clusters in final position. First sentence is, both countries made several arrangements. Aslam helps the needy and poor. A heart pumps blood to all parts of the body. Heather is very good in sports. The bulbs of my table lamps are not working. Next question. Read the phonetic transcript of the given words and also write the words in your notebook. Also underline the consonant cluster in the words. यहाँ पे आपको कुछ words दिए हुए हैं, इसमें आपने ये आपके phonetic transcripts हैं यानी जो हमारी pronunciation keys हैं, हमने इनको read करके और words बताने हैं कि ये कौन से हैं. You can consult a dictionary as well for these words. First is ports, PORTS. इसमें final consonants हैं 3 consonants RTS. This is accent, ACCENT. Accent. NT इसमें consonant 2 consonant cluster है final. Next is grand, GRAND. Next is lamps. Next is wasp, WASP. Next question is vocabulary focus. Read the given words with their meanings. Jurist, exceptional, trial,
embodiment and ignorance. Jurist means कानूनदान, exceptional means गैर मामूली, braille means बिनाई से महरूम लोगों को पढ़ाने का तरीका, embodiment मुजस्मा, ignorance लाइल्मी या जहालत। स्टूडेंट्स आपको वर्ड मीनिंग्स के नोट्स मिलेंगे। आपने उन नोट्स में से नीट कॉपीज पे वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस नीटली लिखने हैं विदाउट एनी मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज द thesaurus. Look at the given text of a thesaurus. We can improve our vocabulary for effective communication by learning new words. A thesaurus is a type of dictionary in which words with similar meanings are arranged in groups. Similar meaning words means कि जिनके meanings same होते हैं वो words arrange होते हैं with their meanings in a thesaurus. Word is dedicated. This is the phonetic transcript or the pronunciation key. You can hear its pronunciation from this. आप यहाँ से इसकी जो pronunciation है उसको सुन भी सकते हैं ये ऑनलाइन डिक्शनरी में। This is a part of speech means ये एक adjective है। Loyal, hardworking. Synonyms for dedicated. Synonyms means same meaning words. Committed, devoted, enthusiastic, faithful, zealous, sworn, ये सारे इसके synonyms हैं, means इसके हम मायने अल्फाज। Write the synonyms of the given words in your notebook. Use a thesaurus for help. आप इसके लिए thesaurus की help ले सकते हैं और इन words के आपने साथ में synonyms इनके लिखने हैं। हर word के synonyms जितने आप लिख सकते हो 2 or 3 synonyms. First word is jurist. Jurist means इसका हम मायने जो word होगा synonym इसका legal expert, lawyer और judge. Jurist, legal expert, lawyer और judge. Next is exceptional. Exceptional means special, extraordinary, rare. Then next word is embodiment. Embodiments mean avatar, exemplar, symbol. Gratification. Gratification means joy, fulfillment, glee, GLEE, enjoyment. Next is motivation. Motivation means encouragement, interest, desire. आप इनके synonyms खुद से भी सर्च करके लिख सकते हैं। Next question is grammar focus. Position of adjectives in sentence. Adjective are the words which describe noun. ऐसे words जो noun को describe कर रहे हो, कोई उसकी quality वगैरह, उनको हम adjectives कहते हैं। First is attributive adjectives. Attributive adjectives कौन से होते हैं? And adjectives come either before or after the noun. या पहले होता है noun से adjective या फिर उसके बाद होता है। That it modifies. यानी जिसको noun को वो modify कर रहा होता है। Most adjectives appear before a noun and they are called attributive adjectives. बहुत सारे adjectives जो हैं वो noun से पहले आते हैं। जो नाउन से पहले एडजेक्टिव्स आते हैं उनको हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। यानी एवरीबॉडी नोज अ जिराफ हैज अ लॉन्ग नेक। नेक इज अ नाउन। नेक को डिफाइन कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है कि वो लॉन्ग है। इट्स मीन कि ये इसका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। नाउन से पहले जो हमने एडजेक्टिव यूज किया है that is known as the attributive adjective. Second example देखें, my second hand phone is not working. Phone is a noun, second hand is the adjective. So ये noun से पहले आया है, before noun हमने use किया है, that's why it is a attributive
एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज प्रिडिक्टिव एडजेक्टिव। प्रिडिक्टिव एडजेक्टिव क्या होता है? जो एडजेक्टिव दैट कम्स आफ्टर अ नाउन, किसी भी नाउन के बाद में जो आता है उसको हम प्रिडिक्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। The predictive adjective does not appear immediately after the noun. It comes after the linking verb and also act as a complement. ये जैसे हमने एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में पढ़ा कि नाउन के फौरन पहले जो एडजेक्टिव होगा उसको हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे, लेकिन जो प्रिडिक्टिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन के फौरन बाद नहीं होते, उनको एज ए कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है और वो नाउन के बाद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द चिकन सूप इज हॉट एंड स्पाइसी। चिकन सूप एक नाउन है और इसके लिए हमने लिंकिंग वर्ब यूज किया है। लिंकिंग वर्ब के बाद हम प्रिडिक्टिव एडजेक्टिव्स यूज कर रहे हैं, हॉट एंड स्पाइसी। He is intelligent and honest. Is हमारे पास लिंकिंग वर्ब है। इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट जो है ये हमारे प्रिडिक्टिव एडजेक्टिव्स हैं। The stranger looks very scary. Stranger is a noun. This is the verb and scary is the predictive adjective. The teacher appears angry. Teacher is a noun, appears linking verb है, एक verb है और फिर angry is the predictive adjective. Next is attribute and predictive adjective in the same sentence. Means ऐसे sentences भी होते हैं जिसमें attribute और predictive adjective दोनों एक वक्त में दोनों यूज हो रहे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल दी है, the warm air is thick with dust. अब ये दोनों एडजेक्टिव है, warm and thick, बट warm air को डिफाइन करा, air से पहले है, air is a noun, noun से पहले है तो ये हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा, और thick जो कि हमारे एक लिंकिंग वर्ब के बाद आ रहा है, दैट इज द प्रिडिक्टिव एडजेक्टिव। मीन्स कि हमारे पास एट्रीब्यूटिव भी और प्रिडिक्टिव भी सेम सेंटेंस में हो सकते हैं, और किसी भी लिंकिंग वर्ब के बाद एक एडजेक्टिव आ रहा है तो दैट विल बी आवर प्रिडिक्टिव एडजेक्टिव। द बिग हाउस मस्ट बी एक्सपेंसिव टू मेंटेन। द अगली scarecrow appears scary in the dark. The green plants look beautiful after the rain. The red sports car crossed the road swiftly. Next question is position of adverbs in sentence. यानी एक सेंटेंस में हमने एडवर्ब्स को कैसे लिखना है या उसकी क्या पोजीशन होती है, किस कहाँ पे हमने उसको प्लेस करना है। पहले हमने एडजेक्टिव्स पढ़े, दीज आर दी एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या हैं? एडवर्ब्स आर दी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर वर्ब, जो वर्ब को हमारे डिस्क्राइब कर रही हैं कि हमारा वर्ब जो हम एक्शन कर रहे हैं वो किस तरह का है, हम उसे एडवर्ब्स कहते हैं। Adverbs of frequency. First is adverb of frequency. Read the given example and notice the position of the adverbs of frequency. Adverbs of frequency tells us how often or frequently something happen. यानी कितनी frequently, कितनी frequency से और कितनी बार जो है एक चीज हो रही है। Adverbs of frequency are usually placed before the main verb, but after auxiliary helping verb. जो हमारे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं वो कहाँ पे प्लेस होते हैं? बिफोर द मेन वर्ब। एग्जाम्पल, व्हेन द मेन वर्ब इज टू बी, द एडवर्ब इज प्लेस्ड आफ्टर द मेन वर्ब। अगर टू बी है आपका मेन वर्ब तो फिर जो एडवर्ब है वो टू बी के बाद में आएगा। बिफोर द मेन वर्ब, I always comb my hair after taking a bath. Neck or usually washes the clothes. ये हमारा before the main verb. Comb is a main verb तो उससे पहले आया है। यहाँ पे washes is the main verb तो हमने उससे पहले यूज किया है। We often meet at the coffee shop.
मीट इज द मेन वर्ब एंड उससे पहले हमने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज किया है, ऑफन। बिफोर द मेन वर्ब बट आफ्टर द ऑक्सिलरी वर्ब, यानी मेन वर्ब से पहले लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद। He has sometimes asked for my book to read. Has is a helping और auxiliary verb, इसके बाद में हमने यहाँ पे यूज किया है, और asked is the main verb, main verb से पहले and helping verb के बाद में। We have really talked to each other about politics. Have is a helping verb and talked is a main verb. हमने helping verb के auxiliary verb के बाद में और main verb से पहले ऐड किया। Adverb of frequency. Summer will never make dinner for all of us. Next is with the verb to be. यहाँ पे हमने पढ़ा है कि to be होगा तो ये after the main verb जो है वो इसको हम place करेंगे। I am always happy. Am is the main verb. He is usually obedient and punctual in school. Is the main verb here. Mother is occasionally looking at her child. Is the main verb. और उसके बाद में after the main verb हमने इसको place किया है। I hope कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। Next type is adverbs of time. Adverbs of time tell when the action is done. पहले हमने frequency पढ़ी थी, how frequently और how often, और यहाँ पे जो time है ये हमें when बता रहा है, यानी कब वो action हुआ। Adverb of time can be used to put emphasis in a sentence. एक sentence में emphasis को ऐड करने के लिए हम ये लिखते हैं। Adverbs of time are most commonly put at the end of the sentence. अक्सर जो है इसको हम जो सेंटेंस का एंड होता है वहाँ पे इसको हम प्लेस करते हैं। But they can sometimes be placed at the beginning of the sentence to emphasize the time. जब हमने ज़्यादा emphasize टाइम पे करना होता है इसको हम सेंटेंस के स्टार्ट में भी लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स ऑफ टाइम की एग्जाम्पल दी हुई है। आई विल स्टडी टुमारो। टुमारो इज दी एडवर्ब ऑफ टाइम और इसको हमने यहाँ पे सेंटेंस के एंड में प्लेस किया है। टुमारो आई विल स्टडी, यहाँ पे मेन फोकस स्टडी पे था इसलिए एम्फसाइज नहीं किया गया टुमारो पे। यहाँ पे टुमारो पे मेन स्ट्रेस है इसलिए हमने इसको एम्फसाइज करने के लिए इसको हमने सेंटेंस के स्टार्ट में लिख दी। शी विल स्टडी लेटर, वो बाद में पढ़ेगी। यहाँ पे भी स्टडी का है तो इसलिए हमने लेटर को मीन्स एडवर्ब ऑफ टाइम को एट द एंड ऑफ द सेंटेंस जुमले के आखिर में लिखा है। लेटर शी विल स्टडी, यहाँ हमने एम्फसाइज दिया है टाइम को तो इसलिए इसको हमने सेंटेंस के स्टार्ट में लिखा। नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री शोज द लेवल और रेंज दैट समथिंग इज डन, यानी किस लेवल पे और किस रेंज पे हमारा एक्शन हुआ है उसको हम एडवर्ब ऑफ डिग्री में बताते हैं। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री आर यूजुअली प्लेस बिफोर द एडजेक्टिव एडवर्ब और वर्ब दे मॉडिफाई, यानी जिस वर्ड को वो या वो वर्ब भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, और वो कोई वर्ब भी हो सकता है जिसको वो मॉडिफाई कर रहे हैं उससे पहले लिखते हैं। देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस रूल, इस रूल में एक्सेप्शंस हैं। द वर्ड्स टू, इनफ, वेरी एंड एक्सट्रीमली हैव देयर ओन रूल्स, यानी कुछ वर्ड्स जो इस डिग्री एडवर्ब्स ऑफ डिग्री के हैं उनके अपने रूल्स हैं, जैसे टू, इनफ, वेरी एंड एक्सट्रीमली, इनके अलग से रूल्स हैं। वो हम आगे इसको रीड करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस देखें। दे आर टोटली फाइन, शी इज परफेक्टली हैप्पी गर्ल, ही इज एक्सट्रीमली टायर्ड। अब नेक्स्ट है एडवर्ब के रूल्स। टू, एडवर्ब टू ऑल्सो,
यानी एक जो हम टू यूज करते हैं फॉर ऑल्सो, उसके लिए है कि डू यू वांट टू कम टू, यानी आप भी आना चाहते हैं, जो हम ऑल्सो के मीनिंग में यूज करते हैं टू को, ये उसकी एग्जांपल्स हैं। द टू ऑल्सो इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, यानी जब हम ये वाला ऑल्सो वाला टू लिखते हैं तो उसको हम सेंटेंस के एंड में प्लेस करते हैं। सारा लाइक्स किरण एंड किरण ऑल्सो लाइक्स हर टू, इसको हमने टू जो ऑल्सो वाला है यानी शी लाइक्स हर ऑल्सो, तो इस टू को हमने इसके सेंटेंस के एंड में प्लेस किया है। नेक्स्ट इज टू एक्सेसिव वाला, यानी जो जिसमें हम कहते हैं कि टू मच। एडवर्ब टू एक्सेसिव इज प्लेस्ड बिफोर द एडजेक्टिव और एडवर्ब इट मॉडिफाइज, जिस एडवर्ब और एडजेक्टिव को ये मॉडिफाई कर रहा होता है उससे हम पहले इसको प्लेस करते हैं। इट इज टू स्मॉल, द आइसक्रीम इज टू यमी। नेक्स्ट इज वेरी, वेरी मीन्स एक्सट्रीमली और रेयरली, द एडवर्ब वेरी इज प्लेस्ड बिफोर द एडजेक्टिव और एडवर्ब इट मॉडिफाइज टू मेक इट्स मीनिंग स्ट्रॉन्गर, उसको स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए हम इस वर्ड को वेरी को बिफोर द एडजेक्टिव एंड एडवर्ब जिसको ये मॉडिफाई कर रहा होता है उससे पहले हम यूज करते हैं। द एडवर्ब वेरी, आई एम वेरी टायर्ड, शी इज वेरी शॉर्ट। अब टायर्ड और शॉर्ट को ये मॉडिफाई कर रहे हैं तो इसलिए इसको हम इससे पहले लगाएंगे। एडवर्ब ऑफ रीजन, रीजन एज वी नो कि कोई जो वजह होती है एक्शन की। एडवर्ब्स ऑफ रीजन शोज द रीजन फॉर एन एक्शन, यानी किसी भी एक्शन की वजह। दे आर प्लेस इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के मिड में हम लगाते हैं, ऐड करते हैं उसको, यानी हम रीजन होती है कि अगर कोई चीज हुई है तो वो किस वजह से हुई है। जैसे हम एग्जाम्पल इसकी पढ़ते हैं, हामिद कुड नॉट सेल हिज प्रोडक्ट ड्यू टू हिज सिकनेस, हिंस ही डिसाइडेड टू वर्क हार्ड, यानी वो अपनी सिकनेस की वजह से प्रोडक्ट नहीं कर सका सेल, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो मेहनत करेगा। टूबा वॉज जेलस ऑफ सारा बिकॉज शी ऑलवेज गॉट द हाईएस्ट मार्क्स, तूबा सारा से जेलस थी क्योंकि वो उससे ज्यादा या बहुत ज्यादा मार्क्स लेती थी, तो ये रीजन है इसकी। सो इट इज द एडवर्ब ऑफ रीजन, हमें रीजन बता रहा है। सो स्टूडेंट्स जो काइंड्स पढ़ी हैं वो थी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड एडवर्ब ऑफ रीजन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज preposition. Preposition of position. Preposition of positions are used to indicate a specific position of a noun. किसी noun की कोई specific खास पोजीशन को शो करने के लिए हम preposition of positions ऐड करते हैं। Preposition of positions है between, in, on, inside, beside, behind, among, below, near, at, on, under, upon, across, by, above, in front of. Position of time. Position of time होती है on, at, in और since। ये हम यूज करते हैं टाइम को डिस्कस करने के लिए, जैसे हमने किसी मंथ का, किसी दिन का या किसी घंटे का, सीजन का या कोई हमने जनरल डे का किसी का टाइम बताना हो तो हम उसके लिए on, at, in या since यूज करते हैं। Preposition of movement and direction, यानी मूवमेंट सेम तो हरकत की जो हम prepositions यूज करते हैं उसके लिए वो होती हैं to, across, along, around, into, off, on to, over, towards, over, through। और ये preposition शो करती हैं किसी भी चीज की मूवमेंट या डायरेक्शन को किसी चीज की तरफ, किसी जगह की तरफ या किसी जगह से जो उसकी मूवमेंट हो रही है उसको ये शो करती है। नेक्स्ट इज रीड द गिवन पैराग्राफ एंड नोटिस द यूज ऑफ प्रेपोजिशन। आपने पूरा ये पैराग्राफ रीड करना है और इसमें डिफरेंट प्रेपोजिशंस दी गई हैं। रेड में जो प्रेपोजिशंस हैं वो आपके प्रेपोजिशन ऑफ पोजिशंस है, रेड वाली, और जो ग्रीन में है वो आपके प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है, और जो आपकी ब्लू में लिखी हुई है, स्काई ब्लू में,
These are the prepositions of movement or direction. Let's read it. I was in the park sitting on the bench when I saw a person in a wheelchair. A young boy was pushing a wheelchair towards me. Towards is the preposition of movement, यानी मेरी तरफ. I looked at the man sitting on the wheelchair. On means पर. Wheelchair पे बैठा हुआ था. He saw a middle-aged man. He greeted each other. He asked my permission to sit beside me. यानी मेरे साथ बैठने की परमिशन ली. ये आपकी preposition of position है. The boy left the wheelchair along with some food and went to play with his friends in the park. और उन्होंने कुछ फूड लिया और फिर वो अपने दोस्त के साथ पार्क में चले गए. We started talking to each other like friends in no time. His name was Arshad and he was a painter. He worked in a private company. एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था. He told me that he was disabled by birth. यानी by birth means पैदाइश से वो माजूर था. It was very nice meeting him. यहाँ पे अब हमें preposition of position, preposition of time और preposition of movement और direction हमें दिया हुआ है इस पूरे पैराग्राफ में. Question is, write a paragraph about any motivational incident of your life in your notebook. Remember to use the correct prepositions. आपने कोई भी पैराग्राफ इन मोटिवेशनल पैराग्राफ जिससे आपको मोटिवेशन मिली हो, आपको कुछ करने का आप में जज्बा आया हो, ऐसा कोई आपने पैराग्राफ लिखना है. पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपने प्रपोजिशंस, ये जो हमने रीड किया, इन प्रपोजिशंस को भी करेक्टली यूज करना है. ये आपकी एक असाइनमेंट है, आपने ये काम खुद से करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइटिंग फोकस. इनिशियल क्वेश्चंस कौन से होते हैं? इनिशियल क्वेश्चंस आर नॉट इजी टू कॉम्प्रीहेंड. ऐसे कि जो कॉम्प्रीहेंड करने में थोड़े इजी नहीं होते, आसान नहीं होते. दे आर नॉट आंसर डायरेक्टली, क्योंकि उनका आंसर जो है वो डायरेक्टली नहीं दिया जा सकता. वी हैव टू रीड द टेक्स्ट अगेन एंड अगेन फॉर आंसरिंग दीज क्वेश्चंस. और इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हमें टेक्स्ट को बार बार पढ़ना पड़ता है. व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम फिजिकली चैलेंज पीपल, यानी हम उन फिजिकली चैलेंज पीपल से हम क्या लर्न करते हैं या हम क्या लर्न कर सकते हैं. तो इसका आंसर हमें बुक में टेक्स्ट में भी मिल सकता है, लेकिन आपने इसका आंसर खुद से लिखना है. हम क्या लर्न करते हैं? दैट ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हान ताला आर इन द बेस्ट वे पॉसिबल. जो हमें दी गई हैं अल्लाह ताला ने नेमतें, वो सबसे बेहतरीन है. And we should thankful to Allah subhanahu wa ta'ala, and we should be dedicated and determined and focused so that we can achieve anything we dream of. Right? Have you ever helped a physically challenged person around you? How can we help physically challenged people around us? इसका आंसर आपने खुद से लिखना है कि आपको क्या आपने कभी किसी डिसेबल या फिजिकली चैलेंज पर्सन की हेल्प की है? अगर आपने उनकी हेल्प की है तो आपने किस तरह की है और हम किस तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं. आर फिजिकली चैलेंज पीपल प्रोवाइड विद एम्पल अपॉर्चुनिटीज इन आवर कम्युनिटी. व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, यानी हमारी कम्युनिटी में भी उनको, सोसाइटी में भी उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, मौके मिलने चाहिए. हम क्या उनके लिए कर सकते हैं? आपने इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं. आपको टेक्स्ट में से भी इसके आंसर्स मिल जाएंगे और आपके जो लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकस आपका एक डायलॉग है उसमें से भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा. आप उसको दोबारा से आप उसको रीरीड करें, आपको टेक्स्ट के अंदर से ही इनके आंसर्स मिल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइंड मैप.
Fill the given mind map and write 2 or 3 paragraphs about your favorite personality in your notebook. आपकी कोई भी फेवरेट पर्सनैलिटी है यानी पसंदीदा शख्सियत है, उसके बारे में आपने एक पूरा ये जो बॉक्स दिए हुए हैं इनमें एक माइंड मैप बनाना है। माइंड मैप के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। माइंड मैप आपने मीन्स आपने उस पर्सनैलिटी के बारे में जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको आपने इन पॉइंट्स में लिखना है, जैसे उनके चाइल्डहुड से लेके फिर उनकी एजुकेशन के बारे में, फिर आप किस वजह से वो आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी है, उसके रीजंस, और फिर उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, उनके काम हैं, उनके बारे में। ये सारे आप पॉइंट्स अपने माइंड मैप में ऐड करके और एक पूरा जो एक पैराग्राफ्स हैं वो लिख सकते हैं अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी की। सो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपने अपनी बुक पे भी इसके माइंड मैप कंप्लीट करना है और अपनी कॉपीज पे भी किसी भी अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में 2 to 3 पैराग्राफ्स आपने लिखने हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा ग्रामर, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, उसके बाद हमने फोनिक फोकस में कॉन्सोनेंट्स क्लस्टर्स पढ़े डिफरेंट, यहाँ उसके बाद हमने यूज ऑफ थिसॉरस देखा कि किस तरह से हम सिनोनिम्स थिसॉरस में से ले सकते हैं। आफ्टर दैट हमने पोजीशंस ऑफ एडजेक्टिव पढ़ी, जिसमें हमने एट्रीब्यूट, प्रेडिक्टिव और एट्रीब्यूट एंड प्रेडिक्टिव इन द सेम सेंटेंस, इनकी पोजीशंस को पढ़ा। उसके बाद हमने पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स को अपने उन सेंटेंसेस में किस तरह से यूज करना है इसके बारे में हमने रीड किया, और एडवर्ब्स के जो टाइप्स थी जो हमने रीड की या लर्न की इस लेसन में, वो थी एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, adverbs of time, adverbs of degrees and adverb of reason। उसके बाद हमने preposition के 3 टाइप्स पढ़ी, preposition of position, preposition of time and then preposition of movement and direction। At the end हमने initial questions के बारे में सीखा कि initial questions क्या होते हैं और हमने इनका किस तरह से आंसर देना है। Then आपकी एक असाइनमेंट जो कि आपके राइटिंग फोकस की असाइनमेंट है, विच इज राइट 2 to 3 पैराग्राफ्स अबाउट योर फेवरेट पर्सनैलिटी। आपने किसी भी अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में 2 to 3 पैराग्राफ लिखने हैं थ्रू द हेल्प ऑफ दिस माइंड मैप जो आप यहाँ पे फिल करोगे। ओके स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। सी यू सून इंशाल्लाह। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।